Today I will be speaking on the mystery of godliness, and the Bible speaks about mystery in many parts of the New Testament. आज मैं आपके बीच में भक्ति का भेद के बारे में समझाना चाहता हूँ और वचन में इस भेद के बारे में कई बार कहा गया है। So I was just seeing around 21 times the word mystery occurs in the New Testament. और नए नियम में 21 बार इस वचन को दोहराया गया है। So the meaning of mystery is hidden truth or a secret. और जो भेद का मतलब ये है कि जो छिपा हुआ है या जो रहस्यमय है। So Jesus said in Mark chapter 4 verse 11, "Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but to them who are outside or without, all these things are done in parables." और मरकुस का 4 अध्याय और उसके 11वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद को समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। So God wants to reveal His mysteries to us. तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो सारे भेद को हमें समझाए। But in Proverbs 25:2 it says, "It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search out a matter." और नीति वचन 25 के 12 में कहा गया है कि 25 के दूसरा वचन में कहा गया है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। So, even though God wants to show us mysteries and give us the knowledge of Him, if we are not seeking after it, if we have a casual or not, we don't have a thirst and longing, then we'll find difficult to know the mysteries of God. अगर हम इस जो गुप्त बातें हैं और जो रहस्य है, इसको पाने के लिए हम प्रयास नहीं करते और हमारे में वो जो प्यास है या खोजने की इच्छा नहीं है, तो वो हमारे लिए छिपा ही रहेगा। Now, the Apostle Paul says that the mystery, which was hidden for many ages, he says it in Colossians 1:26. It says that is the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has now been manifested to his saints. और कुलूसियों पहला अध्याय और उसका 26 में पौलुस कहते हैं, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। So God would speak through his prophets so many things, and the prophets would be surprised what what I'm writing, what I'm hearing. I don't understand. Is it for now or when is it for? और जो प्रभु ने अपने जो भविष्यद्वक्ता हैं उनको ये सब बातें प्रकट की, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता था कि किसके बारे में और किसके लिए ये जो भेद है वो बताए जा रहे हैं। This we find in 1 Peter chapter 1 verse 10 and 12. और इसे हम पहला पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन से 12वें वचन तक देखते हैं। As to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful search and inquiry, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating, as he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. It was revealed to them that they were not serving themselves, but you in these things which now have been announced to you through those who preach the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven,
things into which angels long to look. पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से 12 तक इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। So this mystery was hidden even to the prophets, even though they spoke, they prophesied about it. The mystery was hidden to them, and the angels also wanted to have a clear understanding, but they also did not know. They also could not. They wanted to look. They wanted to get a clear glimpse, but they also were not. It was not possible for them. तो हम देखते हैं जो भविष्य वक्ताओं ने ये जो भविष्य वक्ता की, उन्हें भी समझ में नहीं आता था ये किसके बारे में और किस समय के बारे में वो बता रहे हैं। और हम देखते हैं कि स्वर्गदूत भी बहुत ही लालसा से और ध्यान से वो समझना चाहते हैं इन बातों को। So God, in those days, in the Old Testament period, God spoke about the coming Messiah. हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने जो आने वाला मसीहा है उसके बारे में बात किया। God spoke about the new covenant which is going to come. परमेश्वर ने जो नई वाचा आने वाला है उसके बारे में भी कहा। God spoke about the how Jesus is going to die by crucifixion. और यीशु मसीह कैसे वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे उसके बारे में बताया गया। We'll be surprised to see some of the things how clear it is in Psalm 22. और हम आश्चर्यचकित होंगे जब हमें ये समझ में आएगा कि पुराने नियम में इसके बारे में कितने स्पष्ट रूप से बताया गया है। जैसे भजन संहिता 22 में Psalm 22 verse 16 to 18. भजन संहिता 22 का 16 से 18 तक। For dogs have surrounded me, a band of evildoers encompass me. They pierce my hands and my feet. I can count all my bones. They look, they stare at me. They divide my garments among them. As for my clothes, they cast lots. 16 से 18 तक, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांधते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। This was many years. This was written by David many years before. Probably it could be almost 1,000 years before. I'm not sure about the years, but so clearly it was mentioned, and then it was also prophesied about Jesus' birthplace. और हम देखते हैं कि ये जो बात कही गई है ये राजा दाऊद ने हजारों साल पहले इसके बारे में भविष्यद्वक्ता इतने स्पष्ट रूप से किया था। और यीशु मसीह के जन्म स्थान के बारे में भी हम देखते हैं कि वचन में बताया गया है। It says in Micah chapter 5 verse 2. हम मीका 5वां अध्याय और उसका 2. दूसरा वचन में देखते हैं। But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little among the clans of Judah, from you will come forth, from you will go forth for me to be a ruler in Israel. His goings forth are long ago from the days of eternity. मीका 5 का दूसरा वचन, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता,
तो भी तुझ से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। Then it was prophesied about his virgin birth, it was prophesied about his sufferings, and many, many, many things were prophesied about Jesus. और यीशु मसीह के कुंवारी के द्वारा जन्म लेना और उनके कष्ट उठाना, इन सब बातों के बारे में वचन में पहले से ही लिखा हुआ था। I can send you by WhatsApp, the number of verses which are the prophecies about Jesus in the Old Testament. यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यद्वक्ता की गई है पुराने नियम में, उसके बारे में जो वचन है मैं आप सबको वो व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकता हूँ। It all shows us that how wonderful the gospel and the truth that we believe in is. ये यही दर्शाता है कि जो सत्य है जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं वो कितना अद्भुत और विचित्र है। Today we'll look at the mystery of godliness. आज हम जो भक्ति का भेद है उसके बारे में हम देखेंगे। Again, this was hid for many ages, but it was revealed to the apostles. So we'll speak about the mystery of godliness. ये जो सदियों सदियों के लिए छुपाया गया लोगों से, लेकिन जो प्रेरित हैं उनको प्रकट किया गया, उसके बारे में हम आज देखेंगे। 1 Timothy chapter 3 verse 16. पहला तिमुथियुस तीसरा अध्याय और उसका 16वां वचन। And by common confession, great is the mystery of godliness. He who was revealed in the flesh was vindicated in the spirit, beheld by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। So the apostle says, great is the mystery of godliness. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, Or great is the secret of godliness. या गंभीर है जो भक्ति का भेद है, So, रहस्य है। We can see two aspects of the mystery of godliness. और हम इसका दो पक्ष या पहलू देख सकते हैं। The first one is about Christ coming as a man and becoming our savior. और पहला पहलू ये है कि यीशु मसीह जो सृष्टि करता है वो इस दुनिया में एक मनुष्य का रूप धारण करके वो आए, And by which we could come into fellowship with God. और इस कारण हम परमेश्वर के साथ संगति में आ पाए। The second aspect of the mystery of godliness is that Christ became an example for us so that we could follow in his footsteps. और दूसरा पहलू ये है कि यीशु मसीह हमारे जैसे बनाए गए और हमारे लिए एक उदाहरण बन गए, जिसके कारण हम उनके पीछे चल सकते हैं। Many times we find that the first aspect is mostly preached. हम कई बार देखते हैं कि जो पहला पक्ष है उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है। The second one is preached, but to a lesser extent. दूसरा जो पक्ष है उसके बारे में भी प्रचार किया जाता है, लेकिन कम। So I don't know if we'll have time to go to the second aspect today. As we finish this first, there will be very less time. मुझे नहीं पता कि अगर मुझे समय मिलेगा जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में बताने में। But the burden of my heart was more of the second aspect. लेकिन मेरे दिल में जो भार है वो इसी दूसरे पक्ष के बारे में है। But the first aspect is so faith lifting and encouraging that
we need to speak on it. लेकिन जो पहला पहलू है वो भी हमारे जो विश्वास को इतना बढ़ाता है कि मुझे उस पर बात करना पड़ेगा। So, uh, we read the first statement. He who was revealed in the flesh. हम पहले जो पक्ष है उसके बारे में पढ़ते हैं कि वह जो शरीर में प्रकट हुआ। God, the creator of this world, came to this earth in the form of a man, and the one who was a creator became a creature. जो इस धरती या इस पूरे दुनिया के सृष्टि करता है वो एक मनुष्य रूपी उन्होंने धारण किया और वो एक सृष्टि के रूप में इस दुनिया में आए। Brothers and sisters, this plan of God was before the foundation of the world. ये जो परमेश्वर की योजना थी वो इस दुनिया के बनाने से पहले ही था। We'll be surprised, and we cannot understand these things. We'll be surprised when we read in Ephesians chapter 1, it says we were chosen before the foundation of the world. ये हमें समझने में हमें मुश्किल होगा क्योंकि जैसे इफिसियों का पहले अध्याय में कहा गया है कि इस दुनिया के नींव डाले जाने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। Ephesians 1 verse 4 says, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him in love. इफिसियों पहला अध्याय उसका 4वां वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। Yeah, so Jesus was born of a woman. Galatians 4:4 says, born of a woman, born under the law. और यीशु मसीह ने जैसे गलातियों 4 अध्याय उसके 4 वचन में कहा गया है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। So Jesus came, born of a woman under the law, and he who gave the law, he kept that law. और वो स्त्री से जन्मा और जिसने व्यवस्था दी उसने व्यवस्था का पालन भी किया। He not only kept it in the letter, but he kept it in the spirit also. उन्होंने सिर्फ जो लेख में ही उसे पूरा नहीं किया लेकिन अपनी आत्मा में भी उसको पूरा किया। Thus he fulfilled the law. और इस प्रकार उन्होंने जो है उस व्यवस्था का पालन किया। He lived just like us as a man, but he lived without sin. उन्होंने हमारे जैसे ही इस दुनिया में जीवन जिया लेकिन उन्हें पाप नहीं था। He lived a spotless life with the power of the Holy Spirit. उन्होंने एक निष्कलंक जीवन जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से किया। He loved and did only the will of the Lord. उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की इच्छा से प्रेम रखी और उसको पूरा किया। And thus he offered himself without blemish as a sacrifice for our sins. और इसी रूप में उन्होंने निर्दोष बनकर अपने आप को बलिदान के रूप में हमारे लिए चढ़ाया। The sacrifice of a lamb without defect, or a bull or a goat without defect, would not be able to make the conscience of a worshipper perfect. जो मेमना या बैल या बकरी इन बिना निष्कलंक का जो बलि चढ़ाया जाता उससे जो आराधना करने वाला व्यक्ति है उसका जो विवेक वो सिद्ध नहीं हो सकता था। But the one who came to this world, God who came to this world as a man, and he fulfilled the law and lived a spotless life, that blood, the blood of Jesus, can make our conscience perfect. लेकिन सृष्टिकर्ता जो इस दुनिया में एक मनुष्य बनकर आए
इन सारे नियमों का पालन किया और बिना कलंक का जो लहू है उसको बहाकर हमारे पापों की क्षमा हमें दी। Brothers and sisters, if our conscience is not perfect, if our conscience condemns us, we don't have confidence before God. अगर हमारा विवेक सिद्ध नहीं है और साफ नहीं है तो हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने के जाने का धैर्य नहीं होगा। So Jesus' blood, when we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. He gives us that perfect conscience again. लेकिन जो यीशु मसीह का लहू है जो बिना कलंक का है, जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है और हमें एक सिद्ध विवेक देता है। And we have confidence to come before a holy God, our Heavenly Father. और हमें धैर्य देता है कि हम एक पवित्र परमेश्वर जो हमारे पिता हैं उसके सामने हम जा सकें। So, the Word of God says that Jesus, Hebrews chapter 10 verse 10, by this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. इब्रानियों 10 का 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह का देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। The reason that the blood of Jesus has got that power is because He did only the will of God. यीशु मसीह ने सिर्फ परमेश्वर का जो इच्छा है उसे पूरा किया है, इसी कारण वो अपने लहू से हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। So Jesus lived and demonstrated the life of God on earth. यीशु मसीह ने इस दुनिया में ऐसा जीवन हमारे लिए उदाहरण के रूप में प्रदर्शित The किया। Bible says He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. जैसे इब्रानियों 1 का 3 में कहा गया है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। Now we'll come to the second statement. It says, was vindicated. He was vindicated in the Spirit. और अब हम वो जो दूसरा वचन है उस पर आएंगे, आत्मा में धर्मी ठहरा। That is Hebrews chapter, First Timothy chapter 3 verse 16. The second statement says, was vindicated in the Spirit. पहला तिमुथियुस 3 का 16 का जो दूसरा भाग है वो कहता है कि आत्मा में धर्मी ठहरा। In other words, there's another meaning. He was justified by the Spirit. और इसका एक दूसरा अर्थ जो है वो यह है कि वो अपने आत्मा में धार्मिक ठहराया गया। This is very interesting. ये बहुत ही रोचक बात है। Jesus was punished and crucified for our sins. यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दंड उठाया और वे क्रूस पर चढ़ाए गए। Even though he did not commit any sin, he was punished and crucified for our sins. उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे पापों के लिए दंड सहा। He died as a sacrifice for our sins, shedding his blood on the cross. वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुए और अपना लहू उन्होंने क्रूस पर बहाया। And only the blood of Jesus can cleanse our sin. और सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमें अपने पापों से धो सकता है। That we know from 1 John 1:7. वो हम पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7वें वचन से जानते हैं। So he died and he was buried. वो यीशु मसीह जो मारे गए और वो गाड़े गए। But death was due to the result of sin. जो मृत्यु है वो पाप का परिणाम था। When God created Adam,
he did not plan his. God created Adam and he wanted to have continuous fellowship with him, but only when sin came, death followed. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ संगति में रहना चाहते थे। उनकी योजना में जो है मृत्यु नहीं था। So Jesus died and he was buried. लेकिन यीशु मारे गए और वो गाड़े गए। But because he had no sin, death had no power over him. लेकिन उनमें पाप का ज्ञात नहीं था, इसीलिए मृत्यु को भी उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। Every man, we are all sinners. Every man dies, buried, and our flesh decays. हम सब पापी हैं, इसीलिए हम मरते हैं और जब हम गाड़े जाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो सड़ जाता है। But the Son of God, who did not commit a single sin, death had no power over him, and God raised him up. लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए जब वो गाड़े गए उनका पुनरुत्थान हो गया। That was a vindication by God that he lived a sinless life. इसके द्वारा हमें प्रदर्शित किया गया कि यीशु मसीह जो है उन्होंने पाप रहित जीवन जिया है। Because only a person without sin, the death will not have power. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पाप नहीं करता, तभी मृत्यु को उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। So, and the resurrection of Jesus not only vindicated Jesus but also justified us. यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, वो यीशु मसीह को धार्मिक ठहराया और उसके साथ साथ हमें भी धार्मिक ठहराया। That is the importance of the resurrection of Christ. ये है जो पुनरुत्थान का महिमा। So we are not only forgiven of all our sins, हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। we are not only forgiven, हमें सिर्फ हमारे पाप क्षमा नहीं किए गए, but we are made righteous before God. लेकिन परमेश्वर के सामने हम धार्मिक ठहरे, so that we can confidently have fellowship with God who is holy and light. तो हम धीरज से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं और उसके साथ संगति में रह सकते हैं। Just like Adam had fellowship with God, जिस प्रकार आदम पाप में गिरने से पहले परमेश्वर के साथ संगति में था, वैसे ही हम भी परमेश्वर के साथ संगति में रह सकते हैं। brothers and sisters, that is our birthright, to have fellowship with the living God. ये जो है, ये हमारा अधिकार है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में रह सकते हैं। Not only when we are praying, but all 24 hours. ये सिर्फ जब हम प्रार्थना करते हैं तभी नहीं, लेकिन 24 घंटे हम उसके साथ संगति में रह सकते हैं। Because what Jesus did was, he took our sin and he gave us his righteousness. क्योंकि यीशु मसीह ने ये किया कि उन्होंने हमारा जो पाप है अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता उन्होंने हमें दे दी। 2 Corinthians 5:21 is a wonderful verse. दूसरा कुरिन्ती 5:21 एक बहुत ही सुंदर सत्य है। He made him, that is Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God. So now God has given us the new covenant. और अभी परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी है। He has put his laws into our minds and writes it upon our hearts. उन्होंने हमारे मनों में अपनी व्यवस्था को डाला है और हमारे हृदयों में उसे लिख दिया है। And God works in us both to will and to do of his good pleasure. और परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमारे दिलों में कार्य करता रहता है कि हम उसकी इच्छा कर पाएं। This is the wonderful good news of the new covenant. ये एक बहुत ही अच्छा समाचार है हमारे लिए नई वाचा। That God is with us in our life and we are not on our own. कि हम अकेले नहीं हैं अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। We are now under the law of the Spirit of life. और
अभी जो है हम जो आत्मा जो जीवन की आत्मा है उसके अधीन है। We are under the law of the Spirit of life in Christ Jesus. तो यीशु मसीह में जो आत्मा है उस जीवित आत्मा के अधीन हम लोग रहते हैं। We are not under the law of sin and death like the Old Testament. हम जो पुरानी वाचा में जो व्यवस्था थी जो जिससे मृत्यु का हमारे ऊपर अधिकार था, हम उसके अधीन नहीं हैं। We can live a godly life in fellowship with God by the power of the Holy Spirit. हम एक भक्ति का जीवन जी सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। A life much higher than the standard of the Old Testament. जो पुरानी नियम की जो स्तर है उससे उठकर हम एक बहुत ही सुंदर जीवन जी सकते हैं। So, brothers and sisters, God's mysteries are revealed to the ones who fear Him. परमेश्वर के जो भेद या रहस्य है वो परमेश्वर से भय रखने वालों को प्रकट किया जाता है। And those who hunger for Him. और जो उनके लिए प्यासे हैं। And those who are like babes, humble like babes, they get a revelation. और जो नम्र है छोटे बालकों के समान उन्हें प्रकट किया जाता है। So may God help us to have to really hunger and thirst, and so that He will reveal more and more of His mysteries to us. हम और भी ज़्यादा इस सत्य के लिए हम प्यास और प्यासे और भूखे रहें कि परमेश्वर हमें इन जो रहस्य है इन्हें हमें प्रकट करे। The Lord willing, we will see the second aspect some maybe next week or some other time. हम इस दूसरे पक्ष के बारे में हम अगले हफ्ते या और कोई बार हम बात करेंगे। That will help us in our daily walk with the Lord. वो हमारे दिन ब दिन का जीवन में हमें सहायता देगा। It will help us in our relationships with one another. वो हम एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है उसमें भी हमें सहायता देगा। That is about the practical life of the mystery of godliness. जो प्रायोगिक रूप में जो भक्ति का जो रहस्य है उसके बारे में बताता है। We saw today about the first aspect is about our salvation and how the great salvation that God has given us and the fellowship with God. और हमारी पहला जो पहलू है वो जो हमारे उद्धार के बारे में है उसके बारे में आज हमने सुना। Yeah, amen. This is what I just was able to share today. When Brother Matthew was sharing about mystery of godliness with respect to the revelation of Jesus Christ, the Messiah that was revealed in the due time, that was what was coming to my mind. तो जब भाई मैथ्यू यीशु मसीह एक मसीहा के रूप में जब कैसे हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, जब वह ये बात बता रहे थे तो मुझे इस बात का स्मरण आ रहा था। There's an incident also in the Bible where Jesus himself, after his resurrection, was talking to two of his disciples. We know that incident, the road to Emmaus. तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद एक ऐसा वचन है, ऐसा बाइबल में एक भाग है जहाँ पर यीशु मसीह खुद अपने विषय में दो चेलों को बता रहे हैं। That's in Luke chapter 24. I was reminded of this portion how Jesus had died and there was gloom and sadness and disciples were really sad and they didn't have any hope. Have we come to an end? They have crucified the Lord and here the Lord appears and tries to show them what's going to happen next. तो लूका के 24वें अध्याय में ऐसा वहां पर घटना है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के बाद सारे लोगों में बहुत दुख था और सब बहुत दुखी थे और उनके चेले भी ऐसा उनका मुंह बिल्कुल उतर गया था और वे सोच रहे थे कि अभी सब जगह अंधकार है। And as these two disciples were walking sad on the way to Emmaus, Jesus appeared to them and Jesus had not revealed himself. He had maybe disguised or
somehow they did not recognize these two disciples were walking with him. तो जब ये जो दो चेले हैं यीशु मसीह के, जब वे अमोस की ओर जा रहे थे और तब यीशु मसीह उनसे आकर बातें कर रहे थे, तब यीशु मसीह उनसे बातें करते हुए जा रहे थे, परंतु उन्होंने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट नहीं किया था. And we know that story how Jesus pretended himself as if he is not Jesus, and he was asking them, why are you sad? What happened? And these disciples said, don't you know what has happened in the recent past? How they crucified a prophet named Jesus. तो यहाँ पर ऐसी घटना है जहाँ पर यीशु मसीह उन चेलों से पूछ रहे थे कि आपको क्या हुआ है, आप इतने दुखी क्यों हो. तो तब यह चेले यीशु मसीह को उत्तर देते हैं कि क्यों तुम पूछ रहे हो, आपको क्या पता नहीं है कि क्या हुआ है. Jesus' reply to them was in verse 25 of Luke 24. O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Was it not necessary for Christ to suffer these things and to enter his glory? तो उसका जवाब यीशु मसीह ने लूका 24वें अध्याय के 25 और 26 वचन में दिया. तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे. Then next verse is, then from Moses till the end of the book of the prophets, that is towards the entire Old Testament, he was explained to them all the things concerning himself in all the scriptures. He was revealing the hidden things about Jesus himself to those disciples. तो फिर उसके बाद के जो वचन है वहां पर ऐसा लिखा है कि फिर यीशु मसीह मूसा से और सारे भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में जो भी लिखा है उनकी बातों के विषय में वे समझा रहे थे उन दोनों चेलों को. Then listen to their testimony. As Jesus went away, he disappeared or he went away, their eyes were opened. See their testimony of what they heard. They said to one another in same chapter verse 32, they said to one another, were not our hearts burning within us while he was speaking to us on the road, while he was explaining the scriptures to us? Were not our hearts burning? तो जब यीशु मसीह वहां से उनकी आंखों से ओझल हो गए और उनकी आंखें जब खुल गई, तब इन दो चेले जो थे उन्होंने यह बात कही कि क्या हमारा जो हृदय थे वे आपस में बात करने कि अंदर से उनका मन था वह बहुत उत्तेजित नहीं हो रहा था जब यीशु मसीह हमें ये सारी बातें बता रहे थे. So their hearts were burning. Same thing should happen to us when God gives us the revelation of Jesus Christ coming in the flesh and then living that life of pleasing the Father and overcoming the same temptation that we go through, the lust, the deceitfulness of lust, the pride, the arrogance, all kind of ungodliness that we can do, that Jesus overcame through the same flesh that we have. When we realize that our eyes will open to this mystery of godliness, that this same flesh what we are living in, we can also live that life of victory, and our hearts will burn when something like that happens, when Jesus is revealed in our hearts. तो जैसे उनके मन में उतनी उत्तेजना हो रही थी कि इनके हृदय अंदर से मानो जल से रहे थे, उसी प्रकार से जब हम इस बात को सुनते हैं कि कैसे यीशु मसीह देह में हमारे लिए आए और उन्होंने हमारे पापों के लिए, हम जो हमारी अंदर जितनी लालसाएं हैं उन सारी लालसाओं के लिए उन्होंने अपने जीवन को दिया. तो जब ये बात हम सुनते हैं और उन्होंने अपने पिता की ही इच्छा को हमेशा पूरा किया और हमारी जो गलतियों के लिए उन्होंने सजा भुगती, तो ये सब बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदयों को भी उतनी उत्तेजना होनी चाहिए. ओके, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज भाई मैथ्यू से एक सामर्थ्य वचन सुनने मिला. I thank God for the encouraging word that we got to hear from Brother Matthew. मुझे जो प्रोत्साहन मिला और वचन के द्वारा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. वचन के द्वारा the encouragement that I have received from the word today, I would like to share that with all of you. पहले तिमोथी में लिखा है कि 3:16 में लिखा है कि
एक रहस्य सत्य जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। In 1 Timothy chapter 3 verse 16, it talks about great is the mystery of godliness. क्या है ये रहस्य सत्य का मतलब क्या है असली में? So what is this mystery that is spoken about over here? इसका मतलब यह है कि जब तक परमेश्वर हमें प्रकट नहीं करेंगे हम उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं। ये है रहस्य सत्य। So the mystery is that unless God reveals it to us, we will not know it. जैसे कि हम नया करार में देखते हैं कि जॉन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और वो हमारे लिए हमारा वचन देहधारी हुआ। हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना का किताब में है, लेकिन ये जो चीज है परमेश्वर हमें खुद हमें प्रकट करता है। In the book of John, in the Gospel of John, we read that the word became flesh, but how do we understand these things? It is through God's revelation. यानी रहस्य सत्य का मतलब है कि परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है। ये जो है हमारी ताकत से, हमारी बल से हम पहचानेंगे नहीं, भी जानेंगे भी नहीं। So mystery is something which means that God has to reveal it to us, and we cannot know it out of our own selves. जैसे कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में भी कुछ चरवाहा लोग भी वहां पर भेड़ बकरियों को चरा रहा था, लेकिन वहां पर परमेश्वर की देवदूत आके वहां पर उनको प्रकट किया कि यहाँ पर एक गौशाला में एक बच्चा पैदा हुआ, आप जाकर उसको देख सकता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि परमेश्वर खुद उनको प्रकट करता है इसके बारे में। So similarly, at the time of Jesus's birth, it was the angels of God that had revealed about Jesus's birth to the shepherds who were looking after their flocks at night. So even in this case, we see that it was a revelation from God through which they came to know about Jesus's birth. परमेश्वर उन्हीं लोगों को बताना चाहता है कि जो शहर के राजा है, या उनको ये बात छिपाता है, लेकिन वो लोग इस बात को पहचानते हैं जो दिल में नम्र है। So this revelation was hidden from the king and the other people, but it was revealed to these small people who were humble. या यीशु मसीह का जन्म का समय में भी उस बेथलेहम में और बड़े बड़े राजा थे, मंत्री थे और बहुत बहुत जानकारी थे, फरीसी थे, सदूक थे, जिनके पास ज्ञान है, लेकिन उसकी जो रहस्य बातें उनको प्रकट नहीं किया। उनकी रहस्य बात सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रकट किया जो मन में दीन है, उन लोगों। So at that point of time during Jesus's birth, there were a lot of people in the kingdom. There were kings, there were wise men, there were other knowledgeable people. But this revelation was not given to them, but it was given to those people who were meek and humble in heart. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि जैसा हम दीन बनेंगे, प्रभु उसकी राज की रहस्य बातें हमें बताएगा। I thank God that as we humble ourselves, God will show us and tell us about His mysteries. Praise the Lord. Brother, I've been reading the Bible, and the words that came to me, what I came to understand was, as you say now, the mysteries of God, who He is, what He is doing is too. It's too vast. For us to have, for our simple weak minds to understand. So I kept on looking at some readings, and this words came to me. और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले सप्ताह में जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, तो जैसे कि हमने आज सुना कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है और वह कैसे काम करते हैं, यह एक बहुत ही अपने आप में ऐसा विषय है जो बहुत ही बड़ा और विशाल है। तो इसे समझने के लिए मैं और भी कुछ वचन पढ़ रहा था। In Galatians 5 verse 22, गलातियों 5 का 22, it says the fruits of the Holy Spirit. और यहाँ पर आत्मा के फल के विषय में वचन बात करता है। And then in the other verses it says there that Jesus says
I am the vine and you are the branch. और एक और वचन एक जगह लिखा है जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। So when I see a tree, there are many branches, तो जब मैं एक पेड़ को देखता हूँ तो उसमें कई सारी डालियां हैं, but not every branch has fruit. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक डालियों में फल पाया जाए। And me as a sinner, as a hypocrite, me as a branch is a weak branch. और मैं जिसमें कुछ कपट भी है, मैं एक ऐसी डाली हूँ जो कि कमजोर डाली है। So I want to bear fruit. So I pray that me as a branch will become stronger and I will be able to produce a fruit in my life. तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो कमजोर डाली हूँ, परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मुझ डाली के अंदर फल लगे। So that only through the CFC church, through the elders, brothers, and all of you, only through your support that I can bear fruit. और यह परमेश्वर की कृपा के द्वारा जो हमारी CFC कलीसिया है, हमारे जो प्राचीन है, एल्डर्स हैं, और आप सभी भाई बहनों के द्वारा और आपकी सहायता के द्वारा यह होगा। So I ask for your prayers to strengthen me. मैं आप सभी की प्रार्थना को चाहता हूँ कि मुझे सहायता और शक्ति मिले। And the Holy Spirit will flow through me. कि पवित्र आत्मा मुझ में से बहे। This is what I pray for every day. Thank you, brother. और यही मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ। सभी का धन्यवाद करता हूँ। Thank you. What we heard about today is the mystery. और जो आज हमने वचन सुना है वह एक रहस्य है। Not that we heard about this mystery. हमने एक भेद के विषय में वचन सुना। So Bible says God reveals His mysteries to those who fear Him. और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर अपने भेद की बातें जो उनका भय मानते हैं उन पर प्रकट करते हैं। So we read that there were mysteries hidden from the beginning of creation. और वचन ऐसे कहता है कि सृष्टि की रचना होने से भी पहले यह रहस्य की भेद की बातें छुपी हुई थी। So I was thinking, all these scientists of this world are working day and night to reveal the mysteries in the nature, to us. तो मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि जितने भी यहाँ आज के समय में जितने भी वैज्ञानिक है वो इसी में लगे हुए हैं कि वह इस सृष्टि की रचना और यह जो प्रकृति हमारे चारों हो रही है या कैसे है, इसी पर वो खोजते रहते कि इसके पीछे रहस्य क्या है। They reveal the mysteries of the laws of physics, chemistry, biology. They get a Nobel Prize and they become very big and great. और हम देखते हैं कि यह सारे जो वैज्ञानिक है रसायन विज्ञान और आधुनिक तकनीक के जो विज्ञान है इनकी खोज करते रहते हैं। But the mysteries of God are revealed to not scientists, to those who fear Him. लेकिन परमेश्वर का जो रहस्य है, परमेश्वर की जो भेद की बात है, वह परमेश्वर वैज्ञानिकों पर नहीं, जो उनका भय मानते हैं उन पर प्रकट करते हैं। These are the spiritual mysteries, not the physical mysteries which are revealed to scientists, but the spiritual mysteries on which our life and eternity stands, that they are revealed to those who fear Him. और यहाँ पर जो ये रहस्य की भेद की बातों का वर्णन होता है, ये वे भेद की बातें नहीं जो शारीरिक रूप में है जिससे वैज्ञानिक खोज रहे हैं, यह आत्मिक रीति से रहस्य और भेद की बातें हैं जिसे परमेश्वर हमारे अनंत जीवन से संबंध में रखता है। So who are these people who fear God? तो वह कौन से लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं? They could be some old ladies, fully illiterate, sitting in some remote village somewhere in the world. और वे ऐसे लोग हो सकते हैं जिसमें एक बुजुर्ग महिला है, उम्र वाली बूढ़ी स्त्री है जो अनपढ़ है और एक ऐसे छोटे से गांव में है। So to such people are God revealing His mysteries of life, eternity, and righteousness and all. तो ऐसे लोगों पर यह भेद प्रकट होना, रहस्य की बात प्रकट होना, ऐसे जीवन का रहस्य जो अनंत जीवन है। So I was thinking, we cannot look into the learned people, for the mysteries of God, but God reveals. It has to be known only by revelation of God, which is totally different from the world, with the way the world looks at it.
और सीखने की मनसा से हम परमेश्वर के भेद को समझ नहीं पाएंगे, परंतु यह परमेश्वर के ही प्रकाशन के द्वारा, प्रकटीकरण के द्वारा उसका भेद की बातें हम पे प्रकट होगी। In Matthew 13, Jesus was always speaking in parables, and the disciples came and asked him, "Why are you speaking to people in parables all the time?" और हम मत्ती के 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह दृष्टांतों में ही बातें करते थे, और चेले आकर उनसे पूछते हैं कि आप क्यों हमेशा दृष्टांतों में बातें करते हैं। 13:11 he says, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but not to them." और उसका 11वां वचन कहता है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। Jesus spoke in parables not to illustrate the kingdom of God, but he was hiding important things, so that only those who fear him, the disciples, will understand it when he speaks plainly to them. और यहाँ पर यीशु मसीह जब लोगों से दृष्टांतों में बातें करते थे, तो वो यह नहीं चाहते थे कि दृष्टांतों के द्वारा वह उनको भेद की बातें समझाए, परंतु वो उनसे छुपा कर रखते थे और अपने शिष्यों से सरल भाषा में उन्हें समझाते थे। Another aspect to that is in verse 35 says, so was fulfilled what was spoken through the prophets. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. और इसी के विषय में हम उसी अध्याय के 35वें वचन में पढ़ते हैं, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। So the parables are actually revealing the mysteries hidden from the creation. तो जो दृष्टांत है वो वास्तव में परमेश्वर की जो गुप्त और रहस्य की बातें हैं उनको प्रकट करते हैं। It's but in such a way that the people who fear him will know that there's a mystery, and they will seek God, and God will reveal it to them. और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जब वो इस दृष्टांत को सुनेंगे, वो कहेंगे कि इसके अंदर कुछ भेद और रहस्य की बात छुपी हुई है, वे परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर वह रहस्य उन पे प्रकट करेंगे। Others will hear it, but they will have no clue what is hidden within it. और बाकी जो है वो इस बात को सुनेंगे तो जरूर, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि यह किस विषय में और क्या बात है। So that's very, that is something which, Jesus spoke a lot of parables on the kingdom of God, which are very difficult to understand. Even now, people are trying to figure it out. और यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विषय में कई सारे दृष्टांतों को लेकर बातें की हैं, और आज भी लोग उन दृष्टांतों के अंदर से खोज रहे हैं कि वह क्या है। And also we read about the mystery of godliness. और हमने भक्ति के भेद के विषय में भी सुना। Jesus came in the flesh and he lived a sinless life, and he became a sacrifice for each one of us. यीशु मसीह शरीर रूप में आए और उन्होंने बिना पाप का जीवन जिया, और हमारे लिए एक बलिदान के रूप में वो बलि चढ़े। He died on the cross on my behalf, so that I don't need to die again. और वो मेरे बदले क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी, ताकि मुझे क्रूस पर मरना ना पड़े। As it says in Romans 10:4, that Christ is the end of the law for righteousness. और जैसा कि हम रोमियो 10:4 में पढ़ते हैं कि मसीह व्यवस्था का अंत है For everyone who believes. कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। The Old Testament says that if those who obey the law will become righteous. और पुराने नियम में ऐसे कहा गया था कि जो पुरानी व्यवस्था का पालन करेगा वह धर्मी ठहरेगा। But when Christ came, that was finished. लेकिन जब मसीह यीशु आया तब वह समाप्त हो गया। Christ is the end of the law for righteousness. और यीशु मसीह व्यवस्था से धर्मी ठहराने का अंत है। From Christ onwards, those who believe in Christ will be righteous. और अब मसीह के आने के बाद से लेकर जो मसीह में विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं। This is a mystery which is hidden. Even now people are struggling to understand this. और यह ऐसी रहस्य की भेद की बात है जो छुपी हुई है, गुप्त है, और आज भी लोग इसकी खोज में हैं पता लगाने की। It is just like God is giving one of the greatest treasure free to us. और यह ऐसा है जैसे कि परमेश्वर अपना बहुत बड़ा जो गुप्त धन या खजाना है वह हमें देते हैं, which we cannot believe, our mind cannot comprehend. Somebody can give us something free. और कोई भी हमें कुछ भी मुफ्त में सेंट में ऐसे ही दे सकता है, और उससे हमारा जो दिमाग है वो समझ नहीं सकता। Because our mind is set like that. Suppose somebody says that I will give you a house, very expensive house free. We will not believe it. We will think that there is some hidden, things tied to that, hidden
strings attached to that. और यदि कोई हमसे आकर ऐसे कहे कि मैं तुम्हें एक बड़ा घर जो है वह मुफ्त में ऐसे ही दे दूंगा, तो हम इस रहस्य की बात को समझ नहीं पाएंगे। हम कहेंगे कि नहीं, इसके पीछे कुछ तो बात छुपी हुई है जिसके कारण यह ऐसे कह रहा है, और हम उसका विश्वास नहीं कर पाएंगे। Yeah, that's why the Pharisees were learned people. They could never comprehend that this righteousness will come free by believing in Him. और यही वह रहस्य की बात है जो फरीसी कभी भी समझ नहीं पाए कि केवल विश्वास करने के द्वारा धर्मी कैसे ठहराए जा सकते हैं। So some old ladies like Hannah and Simeon, or old lady like Hannah and Simeon could have a real grasp of it. They were not learned, but they were poor people, but they spent time with the Lord. They understood this child is going to give me salvation, give me righteousness. लेकिन एक बूढ़ी स्त्री जैसे हन्ना एंड अदर वन ब्रदर Simeon. और शमौन, जैसे हन्ना और शमौन जो बूढ़े और बुजुर्ग थे, उन जैसे अनपढ़ लोगों पर परमेश्वर के रहस्य की बातें प्रकट होती हैं। This is the way God deals with human beings. और इसी रीति से परमेश्वर मनुष्य के साथ में व्यवहार करते हैं। If you fear God, God will reveal the mysteries which will transform our life. Amazing these things which you have never seen will be revealed to us. और यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर अपने उन भेद की और रहस्य की बातों को हम पे प्रकट करेंगे जो हमारे जीवन को बदल देगी। If you don't, Bible will remain as a mystery forever. लेकिन यदि आप भय नहीं मानेंगे तो यह आपके लिए हमेशा जीवन भर रहस्य ही बना रहेगा। Pray that none of us will become like those learned people who keep on debating on the Bible without understanding anything about the Bible. और हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हम ऐसे लोग ना बने कि जो कि वचन बाहरी तौर पर केवल ज्ञान के रूप में सीखने के द्वारा केवल विवाद ही करते रहे और वास्तव में वचन को उसकी गहराई से न जान पाए। Amen. Amen. Good afternoon, brothers and sisters. What we had today is a great mystery and also it's a great truth. और भाइयों बहनों, जो आज हमने वचन सुना है वह बहुत ही रहस्य की भेद की बातें हैं और वह एक सत्य भी है। It's a great privilege for us that this wonderful truth is revealed to us while it is hidden from the clever and intelligent people. और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर यह भेद की बातों को हम पे प्रकट करते हैं बजाय इसके कि वह बुद्धिमानों से छिपाते हैं। I also have to wonder what was the reason for God to come as a man? मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि वह क्या कारण है कि परमेश्वर एक मनुष्य का रूप धारण करके आए। See, God is impartial. और जैसे कि हम सभी जानते हैं परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। So in God's creation there are only two created beings which have got conscience and free will. और परमेश्वर ने जितनी भी सृष्टि की रचना की सारी वस्तु की, उनमें केवल दो ही प्राणी ऐसे थे जिनके अंदर उन्होंने एक स्वयं की इच्छा और एक मन, एक विवेक दिया। One is the angels who live in God's presence. पहले जो जीवित प्राणी है वो है स्वर्गदूत जो परमेश्वर की हुजूरी में हमेशा रहते हैं। The other is human beings who live on this earth. और दूसरे हम मनुष्य हैं जिन्हें परमेश्वर ने वह इच्छा और विवेक दिया। Yeah. So, but there's a difference. Like the angels, since they are living in the presence of God, the chances of being tempted is very less compared to us. और यदि हम स्वर्गदूतों के विषय में कहें तो जो कि परमेश्वर की हुजूरी में हर समय रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो उनकी हमारी तुलना में उनके अंदर यह परीक्षा बहुत कम आती है। Yet they could sin, and we have seen that the angels sinned. They rebelled against God, and they were thrown out of God's presence. फिर भी स्वर्गदूतों में से कुछ ने पाप किया और वो परमेश्वर की हुजूरी से निकाल दिए गए। And I don't think there is a rescue plan for the angels to come back to God's presence. मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो स्वर्गदूतों को बचाने का कोई परमेश्वर ने उपाय दिया होगा। But for us, the life on this earth is not as smooth as for angels. Sorry, brother, can you repeat? No, for us, the life on this earth is not as smooth as for the angels who live in God's presence. तो हमारे ये जो धरती पर हमें दिया गया जो मानव जीवन है, यह इतना महत्वपूर्ण जैसे नहीं जैसे स्वर्गदूत स्वर्ग में वह अपना जीवन जीते हैं।
But look at God's love. God, He did not want to have any kind of impartiality towards us. लेकिन हम परमेश्वर की ओर देखें कि वह कैसे उन्होंने हमसे प्रेम किया और बिना किसी पक्षपात के उन्होंने हमारे लिए किया. So when the first man Adam failed, failed, and God had another plan. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था और आदम वहां पर असफल हो जाता है परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के पास दूसरी योजना भी थी. So the original plan for God, the original plan of God for man is that the man should rule on this earth over the entire creation. और परमेश्वर की जो शुरू से ही यह सबसे प्रथम यही इच्छा रही, यही योजना थी कि मनुष्य जो है, आदम जो है, वह परमेश्वर की बनाई सारी सृष्टि की बातों के ऊपर प्रभुता करे. But Adam and Eve failed. Instead of submitting to God and over the creation, they submitted to the creation. लेकिन इसमें आदम और हवा जो है वो असफल हो जाते हैं. परमेश्वर के अधीन होकर सृष्टि की बातों पर प्रभुता करने के बजाय वो सृष्टि की बातों के अधीन हो जाते हैं. But God needed another man who could demonstrate His original purpose, His original plan for man. लेकिन परमेश्वर के पास एक और योजना थी कि वह एक और व्यक्ति के द्वारा अपनी मनसा को, अपनी योजना को फिर से प्रकट करे. So He could not find anyone but His only Son. He Himself had to come as man onto this earth. और वह किसी व्यक्ति को इस बात को दर्शाने के लिए नहीं पाते, केवल अपने इकलौते पुत्र को, कि वह इस धरती पर आकर मानव जीवन में उनकी योजना को प्रकट करे. So one of the reasons for Jesus to come as a man is to demonstrate how we have to live on this earth. तो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण कि क्यों यीशु मसीह इस मानव शरीर में होकर आए, कि वह यह इस बात को प्रकट कर पाए कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, कि हम कैसे जीवन को बिताएं. And Jesus fulfilled that. Jesus lived with a complete, perfect demonstrating perfectly the God's will. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो जीवन दिया वह बिल्कुल सिद्ध रूप में यह परमेश्वर की इच्छा क्या है उस बात को वो उनका जीवन दर्शाता है. And that's why now He is exalted above all. और यही कारण है कि वह सब बातों के ऊपर, सभी के ऊपर वह ऊंचा उठाए गए. So Jesus is honored, and the glory of Jesus is far, far behind the glory of angels. यीशु मसीह को इतना ऊंचा उठाया गया कि उनकी जो महिमा है वह स्वर्गदूतों की महिमा की तुलना में काफी उत्तम है. So that's what God is telling us. If you do, I mean, we also have the same conditions which Jesus had when He lived on this earth. So if we also determine to live the way He lived, we also can partake in His eternal glory. तो परमेश्वर भी हमसे यही आज कहते हैं और चाहते हैं कि जैसे यदि हम परमेश्वर के उस जीवन को पाना चाहते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो जैसे यीशु ने जीवन जिया, यदि हम वैसा जीवन जिएंगे तो उसकी उस महिमा के साथ हम भी भागीदार हो सकते हैं. So that is the challenge for us. We have to look at Jesus and live the way He lived. और यही हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम यीशु मसीह की ओर देखते रहें, ताकते रहें और जैसा वह चाहते हैं वैसा जीवन हम जिएं. So let us take this challenge seriously, and let us take our Christian life seriously, and thereby let us also partake in the eternal glory. तो आइए, ये जो बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि इस चुनौती को हम गंभीरता से ले और परमेश्वर को हम खोजें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे उस जीवन को जीने के लिए जैसा वो हमारे लिए चाहते हैं. Thank you. I really thank God for what I heard today, especially from Proverbs chapter 25 and verse 2. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो वचन आज हमने सुना उसके लिए, और विशेष करके नीति वचन अध्याय 25 का वह वचन. It's a beautiful verse. It says it is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter. और नीति वचन 25 का दूसरा वचन कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है. So it is like, it is the glory of God. It is a part of God to conceal things. It shows that it is like, it's His nature. He does not reveal things easily. He conceals things. और यहाँ पर हम
परमेश्वर की महिमा के विषय में पढ़ते हैं कि यह परमेश्वर का स्वभाव है कि वह अपनी महिमा को, वह अपनी बातों को आसानी से प्रकट नहीं करते हैं, वह गुप्त में रखते हैं। But the glory of kings is to search out a matter. लेकिन राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। And what gave me joy was when I read about a queen, not a king, but a queen that Jesus spoke of in Matthew chapter 12 and verse 42. मुझे आनंद की बात यह लगती है कि एक रानी, ना कि राजा के विषय में परंतु एक रानी के विषय में यीशु मसीह ने मत्ती के अध्याय 12 में कहा। And in Matthew chapter 12 and verse 42, it says that the queen of the south shall rise up with this generation at the judgment and shall condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here. मत्ती अध्याय 12 उसका 42, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। We see that Jesus here was speaking about the Queen of Sheba, and about her we read in 1 Kings chapter 10 and verse 1 onwards. और यहाँ पर हम यीशु मसीह के द्वारा दक्षिण की रानी शिबा के विषय में पढ़ते हैं, जिसका वर्णन पहले राजा के विच चैप्टर से सर? 1 Kings chapter 10 and verse 1 onwards. पहला राजा उसके 10वें अध्याय से हम आगे उसके पहले वचन से लेकर आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं, You see here that Jesus, he says that she came from far to hear wisdom of Solomon, and Jesus is saying that somebody greater than Solomon is here, and you people are not understanding the value of it. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उस रानी के विषय में कि शिबा की रानी बहुत दूर से पृथ्वी के छोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आती है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि अपने विषय में कहते हैं कि यहाँ पर वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। And we read about the Queen of Sheba in 1 Kings chapter 10 and verse 1 to 3. It says, "Now when the Queen of Sheba heard about the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with difficult questions. So she came to Jerusalem with a very large retinue, with camels carrying spices and very much gold and precious stones. When she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart. And Solomon answered all her questions. Nothing was hidden from the king, which he did not explain to her." और हम पहला राजा उसका 10वां अध्याय उसके 1 से लेकर 3 तक हम उस रानी के विषय में पढ़ते हैं। जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको बता न सका। Yeah, so we see here how Jesus appreciated this woman who came and who told all her questions to him. Nothing was hidden from the king which he did not explain to her. यहाँ पर हम यीशु मसीह को प्रशंसा करते हुए पाते हैं इस स्त्री के विषय में, इस महिला के विषय में कि यह इतनी दूर से सुलेमान के पास में प्रश्न पूछने के लिए आती है, और राजा के पास, सुलेमान राजा के पास ऐसी कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि वह कोई भी उसकी एक बात का भी उत्तर न दे पाए। So we see that Jesus expects us to be like that. यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बने। Yeah, he wants us to go to him and live in fellowship with him and bring all our questions to him, bring all that troubles us to him. And it says that Jesus is saying that just like this queen came and nothing, Solomon never hid anything from her. In the same way, Jesus will not hide anything from us.
और यही हम जैसे कि उस रानी ने सुलेमान के पास जाकर अपने सारे प्रश्नों का उत्तर पाया और ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसका उसे उत्तर नहीं मिला हो, वैसे ही यीशु मसीह भी हमसे चाहते हैं कि हम अपने सारे परेशानी और समस्या, हमारे प्रश्नों को उनके पास लेकर जाएं, हम उनके साथ संगत और प्रार्थना में रहे कि ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो हमसे वो छुपाएंगे नहीं। Yeah, isn't it such a privilege for us to be in fellowship with such a God who desires, who longs for fellowship with us. और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसा परमेश्वर हमारे पास है जो यह बहुत ही इच्छा रखता है और चाहता है कि हम उसके साथ संगति में रहे, कि वह हम पर अपनी इच्छा और अपनी बातों को प्रकट करें। So let us not neglect this salvation. आइए हम इस उद्धार को अनदेखा ना करें। Let's hunger and thirst for it, like we heard. Hunger and thirst for this, knowing someone who's greater than Solomon. तो आइए हम हमारे अंदर वह भूख व प्यास हो इस बात को पाने के लिए, जैसे कि जो उसमें सुलेमान के पास जाने की थी। As we are talking about the mystery, and I want to take it on the reality of life. और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, और मैं वचन को वास्तविकता के साथ में लेके जाना चाहता हूँ हमारे जीवन की। It's very good to hear scriptures and all, but unless the experience of life is not there, then it's very hard to solve mysteries in our lives. हमारे लिए यह अच्छा है कि हम सारे इन वचनों को हम सुनते जरूर हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में इसका हमने वास्तव में कोई अनुभव नहीं किया है, तो यह हमारे लिए उपयोग में नहीं, तो हम रहस्य की बातों को नहीं जान पाएंगे। The mystery of the kingdom of God was revealed to us through Jesus Christ, so that we can believe and start trusting in our Lord and in our God. परमेश्वर के राज्य का जो भेद का बात है वह यीशु मसीह के द्वारा हम पे प्रकट किया जाता है। And still, now we need to ask a question to ourselves in our life, that is still the word of God a mystery to us? लेकिन हमें फिर से अपने आप से यह प्रश्न करके पूछना है कि क्या परमेश्वर का जो यह भेद है यह हमारे लिए अब भी गुप्त है, हमारे लिए अब भी छुपा हुआ है। If the word of God is still mystery to us, didn't Jesus said, I will give you a helper who will help you? और यदि परमेश्वर की यह जो बात है हमारे लिए अभी एक भेद के समान, रहस्य के समान है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। Still that helper, you do not know who your helper is, and still is a mystery to you. और यदि आपके लिए बातें गुप्त हैं और छुपी हुई हैं, भेद की बातें, और आप नहीं जानते कि आपके लिए एक सहायक है, Doesn't Jesus say it's not by might and not by power, it's by my Holy Spirit? क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा? Still the Holy Spirit mystery to you? इनके आप भी पवित्र आत्मा आपके लिए एक भेद के समान है? Doesn't say in 2 Corinthians 3:16, the day you turn your face towards the Lord, the veil will be unveiled, and the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord, there is freedom. और क्या परमेश्वर के वचन ने नहीं कहा 1 कुरिन्थी 3:16 में कि परमेश्वर आत्मा है, और जहाँ की परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र। If we are still trying to solve our own problems by ourselves, doesn't God says, don't lean on your own understanding? और क्या अब हम अब भी अपनी ही शक्ति और बुद्धि के द्वारा हमारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं? क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम मुझ पर भरोसा करके मुझ पर निर्भर हो जाओ? Doesn't God says, give me your cross and carry my cross, which is lighter? और यीशु मसीह ने क्या हमसे नहीं कहा कि तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा दो? Is the problem too heavy for you? Doesn't God says, in time of trouble, call upon my name? हो सकता है कि यह समस्या जो आप पर पड़े आपके लिए बहुत ही भारी हो सकती है, आपके लिए भार के समान हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आप सॉरी, कैन यू रिपीट? Doesn't God say to call upon my name in time of trouble? परमेश्वर ने नहीं कहा कि संकट के दिन मुझको पुकार? What name is a mystery to you? Doesn't God say the name above all name,
is Jesus Christ? क्या वह नाम आपके लिए अभी एक भेद के समान है? वह नाम जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। Is still the name of Christ mystery to you when it says there is no other name given to you in heaven, on earth and below? और क्या अभी यीशु मसीह का नाम आपके लिए भेद के समान है, जबकि वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है? Brothers and sisters, I want to say mystery is only that when we can't solve things on our own, it means it's a mystery. But when we lean towards the Lord, when we face up, when we come towards Jesus and we ask for the helper to help us, when we ask him, Jesus, help me, I need your help, I can't do anything without you. Because doesn't God says, without me you can't do anything. और जैसे कि भाई बहनों कोई बात या कुछ जीवन में जिसे हम अपने बुद्धि और शक्ति के द्वारा उसका समाधान नहीं कर पाते, तो वह बात हमारे लिए एक भेद, एक रहस्य के समान है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाए, उसके अधीन हो जाए, कि परमेश्वर हमारे लिए वह काम करे, वह भेद की बातों को हम पे प्रकट करे। कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। Because the word of God that solves every problem in our life, and it's still a mystery to us, it means that we are lacking something. Amen. और ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन यदि हम अब भी इसके अधीन नहीं है तो यह हमारे लिए एक रहस्य की बात है।